So we have seen how to find conflict serializability. Yes, anyone want to speak? Yeah, we have seen conflict serializability. Then we have seen how to calculate view serializability. Then we have seen what is recoverable schedules, what are irrecoverable schedules, how to make these kind of schedules to be a recoverable schedules. Yes. So we'll just overlook with the PPT and we'll start with our next topic. So we have started with transaction. We have seen transactions, state diagram. Then we have seen schedules. Why what are called as serial schedule. Then how to get this conflict serializability. How to check it. How to remove this conflicting instructions and make the schedule as conflict serializable. Then we have seen view serializable. Then we have seen one method is precedence graph for checking uh, the given schedule is conflict serializability or not. If the graph is consisting of a cycle, then it is not a conflict serializable. If the graph consists of no cycle, then we can make that it is a conflict serializable. Then we have seen how to calculate or how to check the given schedule is view serializability or not. The first rule says that if it is a conflict serializable, by default it will be a view serializability. If the case is not happen, you have to check for second case. Second case, there should be no blind writes. Okay. नो ब्लाइंड राइट्स मतलब वो ट्रांजेक्शन के पास करने के लिए कुछ नहीं हो सिवाय राइट ऑपरेशन. लाइक दिस एग्जांपल, आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? Yeah, this is what blind writes. This transaction does nothing but only write. It's blindly writing something. So this is the second condition to check if it is a view serializable or not. If it has a blind writes, then no view serializability. Then third is, if the graph consists of a cycle, then again it is a, yes, again it is a conflict serializability. Then these are the three rules. We draw dependency curve, dependency graph, and by this graph we can analyze that the given schedule is view serializable or not. Okay. Then next part we have seen is recoverable schedules. Recoverable schedules मतलब अगर कुछ भी problem होता है, if the system failure occurs, still we can recover till start of the transaction. ओके. सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये डर्टी रीड कर रहा है. डर्टी रीड मतलब इसने कमिट किया ही नहीं फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे कमिट ऑपरेशन हुआ ही नहीं. उसके पहले क्या कर रहा है, दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू रीड द वैल्यू. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हु इज रीडिंग अनकमिटेड वैल्यू is nothing but called as dirty writes reads. Okay. So commit should be before, then this kind of schedule can be recoverable because इसका commit कब खत्म हो रहा है, इसका कमिट कब हो रहा है, पहले कमिट हो रहा है फिर ये ट्रांजेक्शन का कमिट हो रहा है. तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये ऑटोमेटिक वी कैन रिकवर, क्योंकि इसका कमिट बाद में आने वाला है. तो इसके बाद अपन रोल बैक करके वी कैन प्रिजर्व द कंटेंट लाइक दिस. ओके. Then recoverable schedules again categorized in three parts: cascading schedules, cascadeless and strict schedules. Cascading schedule मैंने आपको यही बोला कि अगर ट्रांजेक्शन T1 T2 पे डिपेंडेंट है, T2 T3 पे डिपेंड्स है और T3 T4 पे डिपेंडेंट है, तो अगर फेलियर T1 में आता है तो इन सबको रोल बैक करते आना चाहिए. दिस इज कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल्स. मतलब एक के प्रॉब्लम की वजह से इन सभी जितने भी ट्रांजेक्शन जो उस पर डिपेंडेंट है उन सबको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा. क्लियर? सो नेक्स्ट इज कैस्केडलेस शेड्यूल. मतलब ऐसे शेड्यूल्स के जो बैक ट्रैक नहीं करे. मतलब अभी T1 का काम खत्म हो गया ना, तो इट हैज टू पुट अ कमिट स्टेटमेंट. अगर इसने कमिट दे दिया दैट मीन्स ये ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड है. इसके बाद अगर रोल बैक भी करना पड़ा तो कहाँ तक जाओगे, अगर T2 में प्रॉब्लम आया तो ऑलरेडी यहाँ तक कमिटेड है ना, तो इसके बाद तो करना है. मतलब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा. अगर इधर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो ये रोल बैक करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका काम तो प्रॉपरली हो चुका है.
है ना। तो दिस काइंड ऑफ शेड्यूल इज कॉल्ड कैस्केडलेस, मतलब डिपेंडेंसी की वजह से एक दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रांजेक्शन में रोल बैक करते वक्त। अगर यहाँ पे कमिट के पहले फेलियर ऑकर होता तो ये यहाँ तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी इसका काम खत्म कर दिया, इट्स ऑलरेडी कमिटेड। समझ में? अगर यहाँ पे कुछ फेलियर ऑकर होता है तो ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का कमिट ऑलरेडी हो चुका। सो दिस टाइप ऑफ शेड्यूल्स इज कॉल्ड एज कैस्केडलेस शेड्यूल्स। क्लियर? देन स्ट्रिक्ट शेड्यूल मतलब मैंडेटरी है कि हर ट्रांजेक्शन का काम खत्म होने के बाद देयर शुड बी लास्ट स्टेटमेंट्स, आइदर वो कमिट करने वाला है या अबॉर्ट करने वाला है या रोल बैक करने वाला है। सो दैट इज मैंडेटरी। अगर ये ट्रांजेक्शन में हो तो ही हम उस शेड्यूल में जहाँ पे ऐसे लिखा हो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल। और उसके अलावा वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने देगा ही नहीं। सो दिस टाइप ऑफ शेड्यूल कैन बी स्ट्रिक्ट शेड्यूल। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग वाइल गेटिंग दिस? मतलब हम लोगों ने जो भी अभी सीखा, सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन करना है, फिर कैसे मेंटेन करना है, तो हम लोग नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो टेक्निक यूज करते हैं, आइदर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। लेकिन ये सब if you apply this type of we can call it as process of conflict serializability and view serializability, what will be happening? एक्स्ट्रा ओवरहेड है ना हमारे पास। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई रीड रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फिर भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है साइमल्टेनियसली रीड, तो कॉन्करेंसी होती ही नहीं है। कॉन्करेंट यहाँ पे क्या होता है? अगर सब मान लो ट्रांजेक्शन T1 काम कर रहा है, जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा तो अदर हैज टू वेट। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से वी कुड नॉट गेट गारंटी ऑफ दिस व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। और सीरियलाइजेबिलिटी में जो भी हम लोगों ने टेक्निक देखे, सो दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट टेक्निक फॉर यूजिंग this for every transaction. So what concurrency control says that a database must provide a mechanism that will ensure that all possible schedules are either view or conflict, ये तो आपको चेक करना ही है, and they should be recoverable और cascadeless। बराबर, वहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग कोई भी पॉइंट में सिस्टम फेलियर ऑकर हो गया तो हमें रिकवर पर होते आना चाहिए, सो रिकवर करते आना चाहिए। सो व्हाट दीज आर द टू मेन फीचर्स ऑफ मेंटेनिंग दिस। तो आपको हर बार चेक करना पड़ता है कि द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और व्यू से ही वो शेड्यूल को हम सीरियल मैनर में लेके आएंगे, जहाँ पे वो एक काम खत्म होने के बाद दूसरे को टाइम मिलेगा। बट अ पॉलिसी इन विच ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन एग्जीक्यूट एट अ टाइम generates serial schedule but provides a poor degree of concurrency. Are serial schedules recoverable or cascadeless? ये तो हमें टेस्ट नहीं करते हैं। So testing a schedule for serializability after it has been executed, it is a little too late। मतलब हम लोग क्या करेंगे, वो रिकवरेबल है या नहीं ये कब चेक करेंगे? जब शेड्यूल पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर हम बाद में चेक करने जाएंगे कि वो रिकवर हो रहा है क्या, वो कैस्केडलेस है क्या, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। सो टू डेवलप अ कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स दैट विल एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, हम लोगों को कुछ नए टेक्निक्स ढूंढने पड़ेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स। कौन सा मैकेनिज्म ये यूज करता है और क्यों यूज करता है? वी हैव सी सी दिस इज दीज आर द टू वेज वी कैन मेंटेन अ कॉन्करेंसी कंट्रोल। फर्स्ट क्या है? लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, और दूसरा टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स वी हैव टू स्टडी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम। So you will be getting a question on either log-based protocols or timestamp-based protocol. We have to see what is the technique, what are the disadvantages of using this technique, then why this technique is being used. That we have to see. Now, before that, we'll just read this statements. What it is says is, concurrency control protocols allow concurrent schedules but ensure that the schedules are conflict of view serializable and or recoverable और cascadeless। ये भी चेक करता है प्लस ये भी चेक करता है। तो प्रोटोकॉल क्या करता है? डू नॉट एग्जामाइन द प्रेसिडेंस ग्राफ, यहाँ पे जरूरत ही नहीं प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करके एंड देन चेक। So different concurrence protocols provides different trade-offs between the amount of concurrency they allow and the amount of overhead that they incur. So based on these two conditions, we will be differentiating how log-based protocols are different with timestamp-based protocols. Now, test for serializability helps us understand why concurrency control protocol is correct. Now, we'll check this thing. Okay. Now, what is log based protocol? Log based protocol में दिस इज अ लॉकिंग मैकेनिज्म। जैसे अभी कोई ट्रांजेक्शन काम कर रहा है तो वो जो एरिया है उसको हम लॉक कर देंगे ताकि दूसरे बंदे नहीं आ सकता है अंदर, या उस सेम डेटा आइटम पे कोई दूसरा प्रोसेसिंग नहीं होगा।
सो अगर उसने होल्ड करके रखा है रिसोर्स तो वो खुद को क्या कर लेगा, लॉक कर लेगा। अभी लॉकिंग के भी टू वेज है, एक तो क्या है एक्सक्लूसिव लॉक एंड सेकेंड इज शेयर्ड लॉक। अभी एक्सक्लूसिव लॉक मतलब जिस लॉक, अगर वो लॉक कोई होल्ड करता है, सो देन डेटा आइटम कैन बी बोथ रीड और एज वेल एज राइट। तो एक्सक्लूसिव में दोनों ऑपरेशन होता है, बंदा जाके उस लॉक जब होल्ड कर रहा है तो दैट कैन रीड आल्सो एंड दैट कैन राइट। लेकिन एक्स लॉक इज रिक्वेस्टेड यूजिंग लॉक एक्स इंस्ट्रक्शन। अभी अ, बंदा डिमांड कैसे कर रहा है, तो इट विल सेंड अ इंस्ट्रक्शंस दैट इज लॉक एक्स। सो वो डिमांड करेगा, फिर वो क्यू में जाएगा, किसको प्रायोरिटी देना दैट विल सी आफ्टरवर्ड्स। सो ये है, हो गया एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव मोड में क्या होगा, रीड एंड राइट बोथ बोथ ऑपरेशंस कैन बी पॉसिबल। अगर आप शेयर्ड मोड में लॉक रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर राइटिंग दिस, जैसे हमने रीड एंड राइट ऑपरेशन देखा ना ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे लॉक डैश विल गेट एस। सो व्हाट इट सेज इज, सी ये वाला, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे रिक्वेस्ट करता है, मतलब जिसको भी जो यूजर को यूज करना है उस काइंड का लॉक, तो दे विल रिक्वेस्ट बाय पुटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस। नाउ शेयर्ड लॉक में क्या होगा, सिर्फ रीड कैन बी अवेलेबल एंड एक्सक्लूसिव में क्या होगा, रीड एंड राइट। अब हम लोग देखेंगे लॉक रिक्वेस्ट आर मेड टू कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। ये बंदा है जो हमने, याद है आप लोगों को, हमने डेटाबेस का पूरा जो डायग्राम देखा था ओवरऑल स्ट्रक्चर में, वहां पे कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर होता था, कंट्रोल मैनेजर। सो दैट इज व्हाट कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ट्रांजेक्शन कैन बी प्रोसीड ओनली आफ्टर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। तो ये बंदा अगर रिक्वेस्ट दे और उसको एक्सेप्ट करके ग्रांट दे तो ही ये बंदे क्या कर सकते हैं, डेटा आइटम पे वो वाला लॉक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये वर्क, इसका वर्किंग कैसे है तो विल सी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लो, लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स, मतलब अगर वो जो लॉक मैनेजर है, कंट्रोल मैनेजर, वो कब किसको कैसे लॉक अलोकेट करेगा, सो बेस्ड ऑन दिस इस लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, एस स्टैंड्स फॉर शेयर्ड लॉक, एक्स एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव लॉक। अगर एक बंदा जो शेयर्ड लॉक ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका है, उसको ग्रांट मिल चुका है, एंड इफ अनदर पर्सन इज रिक्वेस्टिंग फॉर शेयर्ड लॉक, सो दोनों अगर शेयर्ड लॉक यूज कर रहे हैं तो द कंडीशन इज ट्रू, तो उनको अलाउ करेगा कंट्रोल मैनेजर। सो द मैट्रिक्स यूज दिस वैल्यू एज ट्रू। गेटिंग, दो दो पर्सन सेम डेटा आइटम पे अगर शेयर्ड लॉक रिक्वेस्ट कर रहा है, सो द ग्रांट परमिशन विल बी ग्रांटेड। Okay. Now one person on the data item is doing meaning already given access for shared lock, and another is accessing requesting for exclusive lock. So उस केस में नहीं होगा, it will be false, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कंट्रोल मैनेजर इज नॉट गोइंग टू गिव यू दिस रिक्वेस्ट एज अ ग्रांट। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स अगर दोनों एक एक्सक्लूसिव और एक शेयर कर रहा है, या दोनों भी एक्सक्लूसिव कर रहा है, क्योंकि एक्सक्लूसिव में क्या हो रहा है, रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों साथ में हो रहा है, तो दैट विल बी नॉट प्रोवाइडिंग आवर कंसिस्टेंसी। सो ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा फॉर ऑल दिस थ्री कंडीशंस। लेकिन अगर दोनों शेयर्ड है, बिकॉज दे आर रीडिंग, सो दोनों अगर एक साथ रीडिंग कर रहे हैं, हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में देखा था, अगर रीड रीड ऑपरेशन सॉरी हाँ रीड रीड ऑपरेशन होता है तो देर इज नो एनी कॉन्फ्लिक्ट, बट एक रीड और दूसरा राइट होता है, सो देन यू विल बी हैविंग एन प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता है, जस्ट यहाँ पे लॉक यूज कर रहे हैं, तो लॉक कौन सा होगा, शेयर्ड शेयर। क्लियर विद दिस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? A transaction may be granted a lock on an item if the requested lock is compatible with the locks already held on the item by another transaction. समझ में आ रहा है? So based on this compatibility only the request will be granted by control manager. Now, any number of transactions can hold shared locks on an item, but if the transaction holds an exclusive on the item, no other transaction may hold the lock, any lock on that item. कोई भी लॉक नहीं अलाउ करेगा। इफ द लॉक कैन नॉट बी ग्रांटेड, द रिक्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन इज मेड टू वेट टिल इनकम्पैटिबल लॉक्स हेल्ड बाय द अदर ट्रांजेक्शन हैज बीन रिलीज्ड। तो आपको इससे एक पता चला होगा कि बंदा आ रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो हम लोगों ने क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो सेम क्यू मैकेनिज्म इज यूज्ड हियर आल्सो। विल सी, अभी यहाँ पे सी ये चीज बतानी थी, दिस इज हाउ लॉक टेबल इज बीन जनरेटेड। ठीक है, द डायग्राम आई गॉट फ्रॉम दिस अनदर बुक, बट द कलर ऑफ दिस इज ब्लू, but this blue is nothing but it is a field dark, so it's a black. So here the field rectangles, that is blue color rectangles, indicates that the locks are granted.
ओके, वाइट वन इंडिकेट दैट इट दीज आर वेटिंग रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा? तो ऑलरेडी T23 को यहाँ पे लॉक मिल चुका है एंड द लॉक इज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड फॉर दिस। तो ये क्या करेगा, इसको वेट करना पड़ेगा जब तक इसका काम खत्म नहीं होगा। क्लियर विद दिस इज T23। ये इधर ये दो लॉक्स को ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि इन लोगों ने साथ में क्या यूज किया होगा, शेयर्ड लॉक की रिक्वेस्ट की होगी। दोनों का अलाउड है जब तक ये लोग अनहोल्ड नहीं करते, क्योंकि इसने एक्सक्लूसिव लॉक का डिमांड किया होगा T2 में, इसीलिए वेटिंग स्टेट में। जब तक ये अपना काम खत्म नहीं करेगा इसको चांस नहीं मिलेगा। इन दिस वे द ट्रांजेक्शन विल क्रिएट द सीक्वेंस। समझ में आ रहा? नाउ लॉक टेबल ऑल्सो रिकॉर्ड्स द टाइप ऑफ लॉक ग्रांटेड और रिक्वेस्टेड। ये भी स्टोर करता है। न्यू रिक्वेस्ट इज एडेड एट द एंड ऑफ द क्यू ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटा आइटम। अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे T2 को लास्ट में लेके गए, यहाँ पे T23 को लेके गए। नाउ अनलॉक रिक्वेस्ट रिजल्ट इन रिक्वेस्टिंग बीन डिलीटेड। सो जो भी अनलॉक हो गया, मतलब अगर 23 T1 और T8 अनलॉक हो गया तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, तो द लिंक विल बी गिवन टू T2। Clear? If transaction aborts, all waiting or granted request of the transactions are been deleted। अगर एक जगह पे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको जो कनेक्टेड जितने भी क्यू में नोड्स होंगे, everyone will be deleted to roll back। Lock manager may keep a list of locks held by each transaction to implement this efficiently। तो ये पूरा डेटाबेस उसका स्टोर्ड रहेगा कि किसको कितना चांस दिया है, कौन आया था, किसके बाद किसने रिक्वेस्ट सेंड की। तो एवरीथिंग द लॉग विल बी क्रिएटेड फॉर दिस log manager which keeps the records of all these transactions। clear? you understood what is this log thing? ठीक है, अभी हम लोगों को ये चीज देखना है। तो log based protocols क्या होता है? हम इस टाइप से वी राइट अ ट्रांजेक्शन, जैसे हमने लास्ट टाइम सीरियल ट्रांजेक्शन देखा था, उसमें हम लोग रीड राइट लिखते थे। अभी यहाँ पे क्या लॉकिंग मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अगर मेरे पास अगर डेटा आइटम पे शेयर्ड लॉक है तो आई यूज द इंस्ट्रक्शन लॉक डैश एस एंड ब्रैकेट में डेटा आइटम इज ए। अब डेटा आइटम लॉक ऐसे, एस मतलब क्या है, शेयर्ड है, तो दिस इज ओनली रीडिंग, बराबर, एंड दिस इज ऑल्सो रीडिंग। नाउ कंसिडर कर लो, ये इस तरीके से ये लिखते हैं। तो लॉक, शेयर्ड लॉक यूज किया, फिर उसके बाद अंदर उसने रीड ऑपरेशन किया, फिर उसने अनलॉक किया। आप कभी भी नहीं देखोगे कि शेयर्ड लॉक के अंदर कोई राइट ऑपरेशन हो रहा है। सो इट विल ऑलवेज फोकस ऑन रीडिंग ऑफ द डेटा आइटम। अभी यहाँ पे लॉक शेयर्ड लॉक एक्सेप्ट किया, लेकिन डेटा आइटम क्या है, डिफरेंट है, बी है, एंड यहाँ पे उसने क्या किया, रीड बी किया, इसको अनलॉक किया। बाद में आपने ए प्लस बी का क्या किया, एडिशन स्टोर किया, मतलब उसको सम का डिस्प्ले किया, ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी प्रूव करता है। दिस इज हाउ योर कंसिस्टेंसी प्रूव्स। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ लॉकिंग एज अबव इज नॉट सफिशिएंट टू गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी। ये सीरियलाइजेबिलिटी गारंटी नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इफ ए एंड बी गेट अपडेटेड इन बिटवीन, अगर ए एंड बी ये अनलॉक करने के पहले और बी को लॉक करने के पहले यहाँ पे अगर वो चेंज हो गया, तो डिस्प्लेड सम वुड बी डिफरेंट ना, रॉन्ग होगा, बराबर। So due to these problems, the locking protocol is a set of rules followed by all the transactions while requesting and releasing। Locking protocols restrict the set of possible schedules। कभी कभी इसमें वेटिंग टाइम भी हो जाता है ना। ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, अगर सपोज मान लो 4 सिग्नल में से एक सिग्नल को चांस मिल गया और 3 को मिला ही नहीं, व्हाट विल हैपन इज क्योस हो जाएगा एंड द सिचुएशन विल ऑकर एज डेडलॉक। यहाँ पे भी वैसे ही होता। मान लो जिसने एक्सक्लूसिव लॉक डिमांड किया है, वो एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड करके ही बैठा है, वो छोड़ ही नहीं रहा है, उसका काम खत्म ही नहीं कर रहा है। सो देन अदर्स हैव टू वेट। ठीक है, तो ये है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स का इश्यूज। अभी यहाँ पे ये दूसरा शेड्यूल देख लो, एक्सक्लूसिव लॉक डिमांड किया है किसने, बी डेटा आइटम बी पे। इफ यू सी दिस डायग्राम नाउ, यहाँ पे क्या किया है, लॉक एक्स मतलब एक्सक्लूसिव लॉक है, जिसमें ये रीड भी कर सकता, राइट भी कर सकता, करेक्ट। अभी इसने क्या किया, इसने भी लॉक एस मांग, लॉक शेयर्ड लॉक है, मतलब ये सिर्फ रीडिंग का काम कर रहा है। और यहाँ पे उसने क्या किया, ए और डेटा आइटम किसके लिए, बी के लिए भी डिमांड किया। नाउ इसमें क्या होगा, जब तक T3 खत्म नहीं होता T4 नहीं होगा रीड, है ना, जब तक इसका काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है, लॉक यूज किया लेकिन अनलॉक किया ही नहीं है। और अगर ये ट्रांजेक्शन वर्किंग में आता है, ये जब तक अनलॉक नहीं करेगा इनको चांस नहीं मिलना है। सो नाइदर T3 nor T4 कैन प्रोग्रेस एग्जीक्यूटिंग लॉक एसबी शेयर्ड लॉक
causes T4 to wait for T3, है ना, T4 को वेट करना पड़ेगा T3 के लिए, एंड टू रिलीज इट्स लॉक ऑन B while executing lock X, that is A, clause causes T3 to wait for T4. मतलब ड्यू टू दिस इंस्ट्रक्शन दे हैव टू अगेन, इसको इस पे डिपेंडेंट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए वेट करेंगे एंड द सिचुएशन विल ऑकर कि वो दोनों भी रिलीज नहीं करेंगे, द सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेडलॉक. So to handle a deadlock, one of T3 or T4 must be rolled back and its lock should be released. Either किसी को back मतलब एक को initiate करना पड़ेगा and they have to roll back or release it lock. तो ये situations को हम solve कर सकते हैं. So this is the disadvantage of using log-based protocols. Getting my point? आपने अगर लॉक किया, उसको अनलॉक किया ही नहीं, तो वो डेटा आइटम के लिए दूसरों को वेट करना पड़ेगा जब तक एक्स के लिए अनलॉक नहीं करेगा फॉर डेटा आइटम बी. तो क्या करना पड़ेगा, टी फोर को रुकना पड़ेगा, है ना. These are so all theoretical concept. You will be not getting any problem, but they will ask you what are the different pitfalls of log-based protocol. By putting a sample schedule, you have to explain. Clear? Yes. Now, the potential for deadlock exists in most locking protocols. Deadlocks are necessary evil. Starvation is also possible if concurrency control manager is badly designed. है ना, वेटिंग ही करते बैठेगा, ट्रांजेक्शन में बी वेटिंग फॉर एक्स लॉक ऑन अ डेटा आइटम while the sequence of other transaction requested and granted shared lock on the same item. मतलब उन सबको चांस मिल जाएगा, ये बंदा बैठा ही है. The same transaction is repeatedly rolled back due to deadlocks. अगर एक एक ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा उसके लिए वेट करा, बार बार इसको प्रॉब्लम आते गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम इट हैज टू रोल बैक, रिपीटेडली उसको रोल बैक करना पड़ेगा. सो ड्यू टू दिस द प्रॉब्लम्स विल अराइज. सो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर कैन बी डिजाइन टू प्रिवेंट स्टारवेशन. ठीक है. नाउ हमने ये ऑलरेडी देखा लॉकिंग प्रोटोकॉल कैसे होता है. और लॉक मैनेजर कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेपरेट प्रोसेस टू विच ट्रांजेक्शन सेंड्स लॉक और अनलॉक रिक्वेस्ट. ये लॉक मैनेजर को भेजता है. लॉक मैनेजर रिप्लाइज टू द लॉक रिक्वेस्ट बाय सेंडिंग अ लॉक ग्रांट मैसेज, okay, or a message asking for transaction to roll back. In case of deadlock, the requesting transactions waits until if the request is answered. समझ में आ रहा, वो लॉक मैनेजर को कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, लॉक के लिए, अनलॉक के लिए, और विद द टाइप ऑफ लॉक्स, फिर उसके बाद उसको रिप्लाई आना है. देन लॉक मैनेजर मेंटेन्स डेटा स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज लॉक टेबल, जो हमने ऑलरेडी देखा. इट्स अ क्यू लाइक डेटा स्ट्रक्चर to record granted and pending requests. The log table is usually implemented as an in-memory hash table indexing on the name of data item being logged. You have already seen this concept in data structures. Which is this? Hashing with chaining or without chaining? Yeah, who will tell me? Yes, hashing with without chaining. Without chaining. Without chaining. Who will tell me? Any different answer? ये विदाउट चेनिंग है या विथ चेनिंग है? Who will tell me? No answers. Have you learned this? Now you'll be getting the practically how the data structures are used at the back end of many of the concepts in computer engineering. Abhishek, is it hashing with chaining or without chaining? Abhishek, Jain, Adarsh. No answer. Yes. Yogeshwaram. Siddhi. Simran. No answers. Tanvi. अच्छा, ऋत्विक है क्या?
फास्टली आंसर दो मुझे, इनसे तुम्हारा कल जो यूटी एग्जाम है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. हाँ ऋत्विक, कैन यू टेल मी which type of data structure it is? It is hashing with chaining or without chaining? Yeah ऋत्विक, without chaining. What do you mean by then chaining? ये हैशिंग विदाउट चेनिंग कैसे लग रहा है आपको? सेम डेटा आइटम पे अगर सब लोग डिमांड कर रहे हैं तो इट इज कनेक्टेड विद द सेम लिंक लिस्ट, मतलब उस स्पेसिफिक हैश इंडेक्स पे वी आर फॉर्मिंग अ चेन. इट्स अ हैशिंग विद चेनिंग ना, या विदाउट चेनिंग? चेन बना रहा है, दैट मीन्स इट इज जनरेटिंग अ लिंक लिस्ट एट दैट स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ द हैश. ठीक है. सो नाउ डेडलॉक हैंडलिंग. अब डेडलॉक कैसे प्रिवेंट करोगे? अब सिस्टम तो लॉक यूज किया तो समझ लेना वहां पे डेडलॉक तो आना ही है. तो डेडलॉक को कैसे प्रिजर्व करोगे? जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता ही नहीं तो क्या होगा? डेडलॉक ऑकर होगा. इसीलिए तो वहां पे क्या है, ट्रैफिक सिग्नल लगा के रखा है, ताकि क्या, एवरीबडी विल गेट चांस एंड देयर विल बी नो एनी साइकिल. मतलब साइकिल इन द सेंस देयर विल बी नो एनी मर्ज ऑफ द क्राउड. देन how will it prevent this? So system is deadlocked if there is a set of transactions such that every transaction is set is waiting for another transaction in the set. तो इसीलिए डेडलॉक ऑकर होता है. So deadlock prevention protocols ensure that system will never enter into the deadlock state. Now it says that require that each transaction logs all its data item before it begins execution. मतलब उसको उसको जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना उसके पहले उसने इन्फॉर्म करना है कि आई एम गोइंग टू यूज दिस डेटा आइटम, तो अदर वेटिंग स्टेट में रहेंगे ही नहीं. या फिर इट हैज टू इम्पोज पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल द डेटा आइटम, मतलब हर एक को एक टाइम स्टैम्प देना चाहिए, मतलब एवरीबडी शुड गेट अ प्रॉपर टाइम. यार ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल्स यूज करना चाहिए. ग्राफ बेस्ड से क्या, जहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है उसके पहले वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स. Now, there are two following schemes use transaction timestamps for the sake of deadlock prevention. दो स्कीम है, एक तो वेट एंड डाई एंड वुंड एंड वेट. अभी वेट एंड डाई स्कीम में क्या होता है, ये क्या है, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स है, जिस मतलब एवरीबडी विल गेट अ इक्वल टाइम. अभी ये है नॉन प्रिमिटिव. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव? Anybody knows this? This is operating system concepts. Primitive and not non-primitive. Okay, primitive matlab forcefully we have to stop that, and non-primitive is not been forcefully been stopped. So older transaction यहाँ पे क्या होता है, older transaction may wait for a younger one to release the data item. Younger transactions never wait for older transactions, they are rolled back instead. Now a transaction may die several times before acquiring needed data item. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी ओल्डर ट्रांजेक्शन जो वेटिंग में कब से रुके उनको सीधा ये कर दो, मीनिंग द नेवर वेट्स फॉर ओल्डर ट्रांजेक्शन्स, मतलब उनके लिए यंगर ट्रांजेक्शन्स वेट करेंगे ही नहीं एंड दे आर रोल बैक इंस्टेड. वो उनको फिर से चांस दो स्टार्टिंग से विदाउट एनी फोर्सफुल मैनर. दिस इज बिन डन. एंड वुंड एंड वेट में क्या करता है, ओल्डर ट्रांजेक्शन वुंड्स of younger transaction instead of waiting for it, and younger transactions may wait for older ones and maybe fewer rollbacks than wait and die. मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स करते, either you can stop, either you can stop, and then they are roll back, or they can wait and they can die. Okay. Now, in both this method, a rollback transaction is restarted with its original timestamp. Older transaction does have precedence over newer ones, and starvation is hence avoided. So, light we can change this thing. We can preserve our deadlock situation. Now, next protocol will be timestamp based schemes. We'll be seeing this in next lecture, and we'll see this detect कैसे करते हैं and two-phase locking protocol. Okay, this will be our next lecture topics. We'll be moving for now. For what I need to discuss is
Yeah, for your unit test exam, mandatory for all to be present in the test. Okay, those who have problem, already know what is going to have. Now, next is for unit test preparation from unit number 1. Write all the important topics. I'm not going to give you question bank. You have to write the topics. Yes, topics for preparation of your UT exam. Are you writing? Okay. So from unit 1, you have to be, you'll be getting a scenario or any definition. For that, you have to draw a proper ER diagram with all mapping cardinalities. uh, Mapping cardinalities उसमें होना चाहिए. There should be relationship. There should be अगर strong और weak entity attributes के different types used होने चाहिए in ER diagram. Okay, I'll first stop my presentation. Okay, then strong entity and weak entity, you should know about that. Strong entity, weak entity, how are they? How you can compare these two, strong and weak entity. Now EER, that is extended ER feature, where it is applicable, you need to decide and you have to draw accordingly. जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है ना यहाँ पे एक्सटेंडेड EER के फीचर्स है, सो दैट इज यू कैन ऐड. ठीक है. देन ओवरऑल डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए. डेटाबेस के लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम यूनिट नंबर 1, दिस मस्ट इज सफिशिएंट फॉर योर UT एग्जाम. Now from unit number 2, PLSQL block लिखते आना चाहिए for any kind of application. Then cursor you should know and query को solve करना. Okay, are you writing all cursors? PLSQL block code for any of the definition. Yes, then you will be getting a schema of the table and you will be asked with some questions on that. You have to design queries for them. Okay, from unit number 3, you will be having any table sample will be given and they will ask you for 1NF 2NF और 3NF. मतलब 3NF तक उसको लेके जाना है. फंक्शनल डिपेंडेंसी यू शुड नो. BCNF और 3NF में डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज वी टेल दैट 3NF का एक्सटेंशन इज BCNF. फाइन. तो आपको कोई भी टेबल होगा एंड दे विल आस्क यू टू, तो आपको प्रॉपर लिखना है. अगर वो टेबल बाय डिफॉल्ट इन 3NF है, स्टिल यू हैव टू राइट दैट द अबव टेबल इज ऑलरेडी इन 3NF बाय द रूल ऑफ ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी. इन दिस टेबल देर इज नो एनी ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, सो वी कैन tell that the table is in 3NF also. Like that statement you have to mention. ठीक है. Then chords rule, all chords rule, 12 rules you need to know. Yes. And why, what is the process of normalization? मतलब हम normalization क्यों करते हैं? What is the reason behind this? Yes, and from first unit now one topic is missed. What is the difference between file systems and database management system? Yeah, that's it for your UT exam. Okay, and for paper representation, आपका पेपर रिप्रेजेंटेशन में जहाँ जहाँ पे भी टेबल की जरूरत है, फॉर मतलब आप थियोरेटिकल लिखने से अच्छा यू कैन पुट अ टेबल, यू कैन गिव विथ एन एग्जांपल, वो मैटर ज़्यादा करेगा. ओके, आई वांट जितने भी लोग अपियर हो रहे एग्जाम में, एवरीबडी शुड पास एंड दे कैन गेट गुड स्कोर. ठीक है. इंटरनल एग्जाम हैव वेटेज दिस टाइम. फाइन. Any problem with this? Any topic?
Any topic you want me to repeat? Yeah? No, no any issues? Okay. And there will be an MCQ exam. For MCQ exam, you will be having around, I think, 15 question of 20 marks. And I'll be taking that test through your exam bus. I'll share that. Fine. Any topic you want me from unit number 1, 2, and 3 should be repeated. We'll just revise the things. 1 second. Huh? Just will revise some topics fastly. We'll share my PPT. This is levels of abstraction you should know. That is, there are three levels: view level, conceptual schema, physical schema. Or you can write is logical view, and this is physical view. Okay, this is how levels of abstractions been written. And why there are n number of views? Because many views single conceptual, मतलब बहुत लोगों मतलब टेबल एक ही रहेगा, but the people will be looking to that table in different manner, so that is our different views. So many views, single conceptual logical schema and physical schema. Views describe how users see the data. Conceptual schema मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर, हम वर्चुअल टेबल बना के वी क्रिएट लाइक दिस. एंड फिजिकल मतलब जहाँ पे एक्चुअल तुम्हारा फाइल और डेटाबेस स्टोर्ड रहेगा. क्लियर? देन नेक्स्ट इज, दिस इज important. Wait, this diagram is very important. You should know this diagram. Navy users, application programmer, sophisticated user, database administrator. Navy users मतलब जो क्लाइंट है ना, जो नॉन टेक्निकल पर्सन्स हैं, दीज आर नॉन नेवी यूजर्स. उनको सिर्फ इंटरफेस यू हैंडल करना आता है, मतलब इनपुट देने आता है. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हम लोगों का फ्रंट एंड डिजाइन करता है. सोफेस्टिकेटेड यूजर जिसको क्वेरी लिखना आता है. एंड इन लोगों को हैंडल करने वाला बंदा कौन है? तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. क्लियर? ये क्या क्या यूज करता है? ये एप्लीकेशन इंटरफेस यूज करता है, ये प्रोग्राम यूज करता है, ये क्वेरी टूल यूज करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स यूज करता है. देन नेक्स्ट मिडल लेयर का इज क्वेरी प्रोसेसर. तो क्वेरी प्रोसेसर में कैसे होता है? इस एप्लीकेशन प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट कोड लिखेगा, मतलब कॉल करेगा, जो भी तुम्हारा वेबसाइट का होम पेज होगा उसको कंसिडर कर लो. देन कंपाइलर एंड लिंकर विल कंबाइन, मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो फ्रंट एंड से कनेक्टेड है, तो दीज लाइंस आर कनेक्टेड. देन कंपाइलर और लिंकर क्या करेगा? डीएमएल क्वेरीज को कनेक्ट करेगा. डीएमएल क्वेरीज जब रन होना है या आउटपुट रिप्रेजेंट करना है, तो इट विल ऑलवेज गिव विद द डीएमएल कंपाइलर. उसके बाद क्वेरी को इवेल्युएट करेगा एंड देन फाइनल आउटपुट विल बी गिवन टू बैक टू दिस एप्लीकेशन प्रोग्रामर. ओके, आउटपुट सीधा देखो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम और डीएमएल क्वेरीज में कनेक्शन है. सो ये एग्जीक्यूट करके यहाँ पे आउटपुट मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग दिस एज application program. So these are all interconnected with each other. This is called query processor.
फिर होता है स्टोरेज मैनेजर। तो स्टोरेज मैनेजर में कौन सा मैनेजर है? बफर, फाइल, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी एंड ट्रांजेक्शन मैनेजर, ये 4 है। ठीक है। और डेटाबेस में क्या होगा? डिस्क स्टोरेज में तुम्हारा डेटा, इंडाइसिस, डेटा डिक्शनरी, स्टैटिस्टिकल डेटा। ये आपको याद रखना एग्जाम, ये डायग्राम ये एग्जाम में डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए आता है 5 मार्क्स के लिए। एंड देयर शुड बी नो एनी मतलब चेंजेस इन दिस डायग्राम। ठीक है, उसको ट्रिक से याद रखो। देन नेक्स्ट इज वी हैव सीन इज ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में क्या होता है? सी दिस इज दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसको बोला जाता है, ये जो एट्रीब्यूट्स होता है, अगर एट्रीब्यूट के अंडर अंडरलाइन हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की ऑफ दिस एंटिटी। अगर डबल इलिप्स्ड है, मतलब डबल इलिप्स शेप्ड है, देन दिस इज कॉल्ड एज मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड मतलब क्या? नेम को हम मल्टी वैल्यूड बना सकते हैं क्या? यस, नेम को मल्टी वैल्यूड बना सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को मल्टीपल मल्टी वैल्यूड बना सकते हैं क्या? यस, कैन बी मेक। यस, एनी आंसर? फोन नंबर नहीं, हम लोग नेम और डेट ऑफ बर्थ को मल्टी वैल्यूड बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एक बंदे का मल्टीपल फोन नंबर हो सकता है, मल्टीपल ईमेल आईडी हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक बंदे का एक ही हो सकता है, नाम भी एक ही मिलेगा। सो देयर विल बी नो एनी कंडीशंस वेयर यू विल बी पुटिंग दिस एज मल्टी वैल्यूड। समझ में आ रहा है? सो देयर विल बी नो एनी, दिस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ विल बी ऑलवेज अ सिंगल वैल्यूड, इट विल नेवर बी अ मल्टी वैल्यूड। ठीक है। देन दिस इज नेम। अभी नेम कंपोज्ड ऑफ क्या है? फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो नेम के एलिप्स को कनेक्टेड 3 एलिप्स बनाए, सो दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये भी कंपोजिट है। अब स्ट्रीट है, लेकिन स्ट्रीट को क्या होता है? नंबर होता है, अपार्टमेंट नंबर होता है, स्ट्रीट नेम होता है। ये भी क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिटी है, सिटी किसके किसको मिलके बनाती है? एड्रेस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड। तो ये क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो इसमें 3 कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे देख लो, डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपने यूजर से डेट ऑफ बर्थ लिया है तो आप ये एज कैलकुलेट कर सकते हो ना खुद से, बाय पुटिंग अ फॉर्मूला। सो दिस इज कॉल्ड एज डिराइव एट्रीब्यूट, उसको डॉटेड इलिप्स होता है। समझ में आ रहा है? या देन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आर देयर। कैंडिडेट्स, फॉरेन की, वन टू वन रिलेशन कैसे होता है? लाइक दिस। और समवेयर यू विल बी फाइंडिंग एरो पॉइंट होता है। तो सिंगल डायमेंशनल एरो मतलब वन टू वन। ठीक है। देन कैसे ड्रॉ करना है? जब भी आप ईआर डायग्राम बनाओगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टोरी फॉर्म में उसको लिखना है। इस पॉइंट्स में ऐसे लिखो उसको स्टोरी फॉर्म में। एंड हर पॉइंट के लिए उसमें से क्या करो? नाउन ढूंढो। जो भी नाउन होंगे वो क्या होंगे? आपके एंटिटी। और जो वर्ब्स होंगे तो वो आपके रिलेशनशिप बन जाएंगे। इन दिस वे यू कैन ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम, और सामने वाले को चेक करते वक्त समझ में आएगा व्हाट यू हैव व्यूड, मतलब ये सिस्टम को आपने किस तरीके से व्यू किया है। ठीक है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखो, बट इट इज मैंडेटरी। फिर आइडेंटिफाई करो एंटिटीज कितने हैं। जो नाउन है वो सब एंटिटीज है। फिर आइडेंटिफाई करो उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं। की एट्रीब्यूट मतलब प्राइमरी एट्रीब्यूट। जैसे कोर्स नेम है, कोर्स नेम बहुत बड़ा होता है, तो आपने क्या डिसाइड किया? कोर्स आईडी भी होने चाहिए उसके पास। तो आपने कोर्स आईडी को क्या बनाया? की। फिर उसके बाद रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स कौन से है वो निकालो। एंड देन यू कैन ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम जिसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर ये देखो, वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट मतलब क्या है? जिसमें जिसकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होती। समझ में आ रहा? अभी कस्टमर है, तो कस्टमर ऑलरेडी बैंक में उसका अकाउंट है, तो कस्टमर की डिटेल्स उसके पास है। अगर कस्टमर ने कुछ अमाउंट बोरो की तो वो क्या आ जाए? कस्टमर के थ्रू इसको कनेक्टेड है। लेकिन ये लोन का, अगर कस्टमर ने बैंक से कुछ लोन लिया तो ही उसकी एंट्री लोन में जाने वाली है। अदरवाइज ये रिलेशन क्या है? वन टू वन नहीं है। तो ये कब है? जब कस्टमर बोरो करेगा लोन, तो भी लोन को कुछ तो एंटिटी है, तो उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। इट्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अनदर साइंट एंटिटी। सो इसको बोला जाता है वीक एंटिटी सेट। और इसको डबल डायमंड और डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में डबल लाइन है। इसको बोला जाता है दिस इज दिस इज वीक एंटिटी। समझ में आ रहा है? इधर देखो, ये लोन नेम है, ये क्या है? डॉटेड है, मतलब ये क्या है? इट्स डिपेंडेंट ऑन समबडीज, मतलब ये फॉरेन की है, तो ये किसी की और की प्राइमरी पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वीक एंटिटी सेट। ये दोनों का डिफरेंस है।
इसमें खुद की प्राइमरी होती है, इसमें नहीं होती। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये नहीं होता है। ठीक है। एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में क्या होता है? जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन मतलब क्या? मेनी टू वन, अ नंबर ऑफ एंटिटीज आर ब्रॉट टुगेदर टू वन। जैसे आपके पास 3 कॉलम आ गए, पिजन है, स्पैरो है, डव है, बट वो सब लोग एक ही कैटेगरी में आ सकते हैं ना, दैट इज बर्ड्स। तो आपने उसको टॉप टू बॉटम हायरार्की में लेके आए तो उसको बोलेंगे जनरलाइजेशन। फिर दूसरा है स्पेशलाइजेशन, मतलब आप एक ग्रुप को मल्टीपल ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड करते हो, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। जैसे पर्सन है, लेकिन पर्सन कैन बी अ स्टूडेंट, पर्सन कैन बी अ टीचर। अगर अकाउंट की बात ले लो तो कस्टमर क्या है? न्यू कस्टमर है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कस्टमर है, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन। इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, एंड ये होता है हैज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस, दोनों का मर्ज करके। देन एग्रीगेशन, अभी आपने देखा यहाँ पे वर्क्स, इसको चारों तरफ से कनेक्शन आ रहा है, मतलब ये जो रिलेशन है ये 4 एंटिटी पे डिपेंडेंट है, तो इसको 4 एरोस के बजाय वी कैन मेक दिस इज कंप्लीट। एंड ये सब मैनेज करता है मैनेजर। एक मैनेजर है, वो क्या मैनेज करता है? एम्प्लॉय भी, जॉब भी और ब्रांच भी। तो वो 3 एंटिटी पे डिपेंडेंट है, तो इट हैज टू बी अ सिंगल रेक्टेंगल। इसको हम लोग रेक्टेंगल में बना देंगे, इसको एक पूरा रेक्टेंगल बनाएंगे, एंड ये पूरे रेक्टेंगल का कनेक्शन हम मैनेजर्स को देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। सबको ग्रुप करके, पार्ट्स को ग्रुप करके एक होल थिंग बनाना। ठीक है, दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल, ये तुम्हारा कार लाइसेंस का है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यू स्टडी, एटलीस्ट आप ट्राई कर लो एक दो ईयर डायग्राम ड्रॉ करना खुद से। ठीक है। देन हम लोगों ने क्या देखे थे? एसक्यूएल क्वेरीज। क्वेरीज आप प्रॉपरली करो, सारे सिंटैक्स प्रॉपरली करो। सिलेक्ट का क्या सिंटैक्स है, कर्सर क्यों यूज करते हैं, है ना? वाई वी यूज कर्सर, वाई वी यूज अदर ट्रिगर्स कब यूज करते हैं, ट्रिगर को लिखते कैसे हैं, कर्सर है तो कर्सर कब यूज करना चाहिए। सी, आपको किसी ने बोल दिया एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें सभी बंदों का सैलरी इंक्रीज करना है बाय 10%, तो आप क्या करोगे? है ना? द माई क्वेश्चन इज राइट अ PLSQL ब्लॉक वेयर गिव राइज टू ईच एम्प्लॉय इट्स सैलरी बाय 10%। सबका हाइक देना है 10% से, तो आप कौन सी कंसेप्ट यूज करोगे फ्रॉम PLSQL? यस, यस करेक्ट अभिषेक। कर सर, क्योंकि हमें पूरा टेबल एक साथ लेके जाना है और वन बाय वन रो पे हमें चेंजेस करना है, तो हमारे पास क्या होगा? कर्सर। तो उस PLSQL ब्लॉक में आपका कर्सर होना ही चाहिए। लेकिन अभी ये कर्सर क्या है? ये बिल्ट इन नहीं है, आपको खुद करवाना है ना, हर एक की वैल्यू फेच करना। तो आप कौन सा कर्सर लिखोगे? एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, क्लियर विद दिस? सारे क्वेरीज के एग्जाम्पल जो भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वहां पे जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब सॉल्व करो, खुद से क्वेरीज लिखो। देर आर हार्डली 2 or 3 क्वेश्चंस ऑन दैट क्वेश्चन पेपर्स, एटलीस्ट उसको ट्राई कर लो, इट विल मेक योर वन प्रैक्टिस। ओके, सो सेकेंड यूनिट को रिवाइज करना डिफिकल्ट है, पूरा सब रिपीट करना पड़ेगा, तो यू कैन यूज माई PPTs। ठीक है, जो भी PPTs मैंने शेयर किए, वीडियोस मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, वीडियोस भी आप देख लो। क्लियर विद दिस सेकेंड यूनिट? थर्ड यूनिट में कॉर्ड्स रूल तो जो कार्तिक ने बताया, दीज ऑल रूल्स यू शुड नो। देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? अच्छा, पहले सबसे पहले डेटा जब कोई प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अननॉर्मलाइज्ड। हाँ, या नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं उसको, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या अननॉर्मलाइज्ड बोलते हैं। अभी नेक्स्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या है? ईच एंड एवरी सेल शुड हैव बीन ऑटोमिक वैल्यू। ऑटोमिक मतलब वहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होनी ही चाहिए। उसको वन नॉर्मल में लेके आना है, मतलब क्या? उसको प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर में लेके आना है, ताकि हर टेबल के एक सेल में एक ही वैल्यूज हो। यस। देन हम लोग उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आता है, फिर हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या चेक करते हैं? एक प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, प्राइमरी की सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कौन से है जो पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम है, कौन से जो पूरे फुल्ली डिपेंडेंट है। जो फुल्ली है उसको वहीं रखते हैं, जो पार्शियल है उसको रिमूव करते हैं इन 2NF। समझ में आ रहा है? बट डेटा शुड बी इन फर्स्ट NF। नाउ थर्ड NF में हम क्या करते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी निकालते हैं।
मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का हेड, कंसिडर कर लिए 3 कॉलम्स है। तो डिपार्टमेंट और स्टूडेंट में रिलेशन है क्योंकि स्टूडेंट उस डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन उसको डिपार्टमेंट हेड या फिर डिपार्टमेंट का नाम से उस टेबल के लिए कोई रिलेटेड नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उस टेबल के अंदर है, ये दोनों वहां पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी, इसको रिमूव करवाना है, तो आपका एक नया टेबल बन जाएगा। ठीक है, यस, एनी डाउट? आई वॉन्ट योर गुड परफॉर्मेंस इन योर यूटी एग्जाम। हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी सारे कंसेप्ट देखे, हम लोगों का जो सेकेंड यूनिट है उसके सारे असाइनमेंट्स वी हैव कंप्लीटेड प्रॉपरली टिल ट्रिगर। आज हम लोग मोंगोडीबी प्रैक्टिकल में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो बी ऑन टाइम। So that's it from my side. Any doubts? Okay, fine. We'll end with this meeting. मैम बोलो। मैम इज इट ओके इफ वी मतलब 5 जन एक ग्रुप में प्रोजेक्ट के चलेगा क्या? हाँ, क्योंकि मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले कि ओनली 4 ही जन चाहिए करके, और नहीं, हमारा मैं तरफ। आपको पहले ही बोल रही हूँ, मेरा प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट और सर के प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट अलग है, दोनों के रूल्स अलग है। जो भी मैं आपको करेंट इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, सिर्फ मैं डीबीएमएस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हूँ। तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे 5 पीपल भी चलेंगे। हाँ, पर मैम हमारा दोनों तरफ एक ही प्रोजेक्ट है, मतलब डीबीएमएस के लिए भी सेम है और मतलब और एचडीएल के लिए भी लेकिन मैं आपको बोलती हूँ प्रॉब्लम्स आना है, हाँ, तो वही प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम। आना है दोनों प्रोजेक्ट में, ठीक है, क्योंकि चलेगा। मेरे रूल्स अलग है, मेरा रिपोर्ट अलग रहेगा, सर का रिपोर्ट अलग है, सर का प्रोजेक्ट डेफिनेशन अलग रहेगा। फिर मैम दोनों के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा क्या, मतलब? हाँ, अलग रिपोर्ट सबमिट करना होता है आपको। हाँ, लास्ट 2 इयर्स हम लोग सेम प्रोजेक्ट रखते थे, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैम फिर क्या इसीलिए इसमें। फिर हम लोग डीबीएमएस के लिए अलग करें और एचडीएल के लिए अलग है, आप ऐसा हाँ मतलब? हाँ, सभी ग्रुप्स को मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया, मैं सेम प्रोजेक्ट लेने नहीं वाली हूँ, मैंने आपको डे 1 पे ही क्लियर करवाया है। और जिनको भी मैंने स्पॉन्सर्ड कॉलेज का बोला है ना, वो सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के लिए देने वाली हूँ। आप लोग डिसाइड कर लो और आज के आज आप वो प्रोजेक्ट वाला शीट कंप्लीट करो। हाँ, मैंने यस। आपको पहले ही बोला है, मुझे बहुत बड़ा साइट या कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी फ्रंट एंड का प्लेटफॉर्म चलेगा। आई एम नॉट गिविंग यू कि मुझे इतना ही पार्ट चाहिए। हाँ, आप थोड़ा सा पार्ट इधर कर लो, थोड़ा पार्ट उधर दिखा दो, लाइक 2 उसमें अलग होंगे तो भी चलेगा, नो इशू। ठीक है, चलेगा मैम। हाँ ठीक है, मुझे 5 ने, मुझे 6 भी ग्रुप मेंबर्स रहे तो भी चलेंगे, लेकिन टाइटल अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी यूजेबल। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ओके मॅम फाइन। आम्ही तेच हाँ करू का मग क्वेश्चन हाँ पेपर? मयंक, हाँ तुझं तुझं प्रोजेक्टचं आहे ना ते फायनल झालं। हाँ, ते हां ते ते एसीचे मुलं आहेत, तुला मी नंबर शेअर करते मयंक, तू हां त्यांच्याशी बोलून घे आणि तुम्ही लोक मिळून करू शकता। मिळून करू. म्हणजे मिळून इन द सेन्स तुम्ही पण त्यांना गाईड करा, तुम्ही पण त्यांना म्हणजे हे करा, तुम्ही त्याला ग्रुपमध्ये कन्सिडर करा, त्यांना पीबीएल मध्ये दाखवायची ती ऍक्टिव्हिटी आणि अच्छा तुमचा फायनल प्रोजेक्ट होईल, त्यांनाही शिकायला मिळेल तुमच्यापासून, अच्छा ठीक आहे मॅम. त्यांना काही प्रॉब्लेम नाहीये। ओके. मिळून करा, काही प्रॉब्लेम नाही, कारण तो मला प्रोजेक्ट लवकर हवाय मयंक। हो चालेल ना. हम्म, ठीक आहे, हो हो, मी काल बोलले आहे त्या ग्रुपशी, तर तुम्ही करू शकता ते कंटिन्यू। मी तुला आहे ना फ्लो पण पाठवते, मी बनवलंय ते, काय हवंय कसं हवंय म्हणून। चालेल ना मॅम, ठीक आहे. ठीक आहे, हो। हो आणि तुमची युटी एक्झाम झाली ना, तर दिवाळीच्या पहिले ना आपण प्रत्येकाचं प्रोजेक्टचं एक शॉर्ट मध्ये प्रेझेंटेशन घेऊ, आणि तुम्ही तुमचे आयडियाज मला सांगा, काय करतायत कसं करतायत, म्हणजे हो काय हो कुठे मॅम काही असेल ना चालेल. तर सगळ्या ग्रुप्सला सांगते हा मी, हे जनरल स्टेटमेंट फॉर ऑल। So I'll हो take 5 minutes presentation of each group. You represent your project definition. अगर वहाँ पे वो feasible नहीं है, कुछ problem है, तो I'll clear all these doubts. Okay? That's it from my side then. Okay.